Praise the Lord. Praise the Lord. हम थोड़ा सा समय और लेंगे. Short. We'll be taking a short time now, just to meditate on some aspects which are important for us as believers. विश्वासी होने के नाते कुछ बातों पे हमें ध्यान देना है, उस पे हम थोड़ा समय बिताएंगे. You might be thinking, oh, there is another sermon. आप सोच रहे होंगे अच्छा दूसरा सरमन, दूसरा प्रचार भी है आज. I have been to churches where there are 7 sermons on Good Friday. मैं ऐसे भी चर्च में गया हूँ जहाँ गुड फ्राइडे पर 7 प्रचार होते हैं. The 7 words which Christ spoke from the cross, on each of the word there is a meditation. और प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणियों पर अलग अलग मनन चिंतन होता है. When we think about what Jesus Christ bore on the cross for you and me, हम जब सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उसने क्रूस पर हमारे लिए क्या कुछ सहा है, the amount of pain he would have borne for you and me, और कितना दर्द प्रभु यीशु मसीह को आपकी और मेरी खातिर सहना पड़ा होगा. the torture that was going on him throughout the previous day and the day on which he was crucified. और जो अत्याचार उन पर उन दिनों में हुआ. I'm sure thinking of all that pain and trouble he took for us, मैं विश्वास करता हूँ कि ये सोचते हुए जितना दुख उसने हमारे लिए सहा, we can spare some more time listening and meditating upon him. हम अवश्य कुछ समय और बिता सकते हैं उसके बारे में और सुनकर. I just want to talk to you about one of the words which Jesus spoke while he was on the cross. और एक वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला, उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता That हूँ. was the last word which he spoke before he gave his life. और अपने प्राण छोड़ने से पहले वो अंतिम शब्द था जो उन्होंने अपने मुंह से निकाला. He said, "It is finished." उन्होंने कहा पूरा हुआ. It is finished. उन्होंने कहा पूरा हुआ. If you look at the Greek word, it is just a single word, tetelestai. ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में ये एक ही सिंगल शब्द है, टेटेलेस्टाई. And the people of that time knew what it meant. और वहाँ के लोगों को मालूम था इसका अर्थ क्या है. It is a common day-to-day word which is used in a day-to-day language. ये हर रोज की बातचीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है. A merchant who's there in the marketplace, when he is making a transaction and he gets the money, he says, "It is finished, tetelestai." अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस करने वाला मार्केट में है, उसने कुछ खरीद फरोख्त खत्म करी, तो उसके बाद वो कहता था टेटेलेस्टाई, मतलब पूरा हो गया, खरीद का काम पूरा हो गया. If there is an artist who's making a piece of art and after he finishes that, he moves back and he looks at it and he says, "Tetelestai." अगर कोई आर्टिस्ट है, वो कुछ बना रहा है, तो अपनी तस्वीर बनाने के बाद उसे देखकर वो कहता है टेटेलेस्टाई, मतलब पूरा हुआ. It means that there is nothing more that can be done to this piece of art. इसका मतलब कि जो तस्वीर उसने बनाई है उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. Question is, when we think, what is Jesus saying? What is finished? तो सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह ने जब कहा इट टेटेलेस्टाई, इट इज फिनिश्ड, तो पूरा हुआ, उसका मतलब क्या है? It is not that Jesus is saying that my life is finished now. तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मेरा जीवन खत्म हुआ. It is not declaring that he has lost to the enemies or the evil one. यीशु मसीह उस शब्द के द्वारा ये नहीं कहना चाहते हैं कि वो शैतान, वो दुष्ट लोगों के हाथों अपना जीवन हार गए, गवा बैठे. Jesus Christ is proclaiming that he has finished the work for which he was sent to this earth. यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि इस धरती पर जो काम करने के लिए वो आए, वो काम पूरा हुआ. The task that Jesus had was to save the world. जो काम प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, वो काम था पूरे संसार को बचा लेना. And it is that task he has finished while he is on the cross. और क्रूस पर ये काम प्रभु यीशु ने पूरा कर लिया. Right? But then you say, okay, what is there for me? He has finished something, but what is there for me? तो आप कहेंगे कि अगर वो काम पूरा हो गया तो मेरा उससे क्या लेना देना है. Please remember, it is something that he did for you and for me. याद रखें कि जो उसने किया क्रूस पर, वो आपके लिए और मेरे लिए किया. He did for the entire mankind. उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए ऐसा किया. So what is this task? तो ये काम क्या है? This is the task of reconciliation. और ये जो काम है, ये मेल मिलाप का काम है. Reconciliation of mankind with God the Father. और परमेश्वर के साथ मानव जाति का मेल मिलाप का ये
काम है जो उन्होंने पूरा किया है। Today, you and me, when we are living in this world, we feel everything is okay. आज आप और मैं इस संसार में जीते हैं, हमें लगता है सब कुछ ठीक है। We feel everything that is moving around us, it is fine. हमें लगता है कि जो कुछ हमारे आसपास चल फिर रहा है वो सब कुछ अच्छा है। Right? We are living a good life. We are coming to church. We have money. We have houses. We have cars. Everything is fine. हम एक संपन्न किस्म का जीवन जीते हैं, ऐसा लगता है कि हम चर्च आते हैं, हमारे पास घर है, सब चीजें हैं, सब कुछ हमारे पास है। But the world is not what it was supposed to be. लेकिन जो संसार है वो वैसा नहीं है जैसा संसार को होना चाहिए। God created a perfect world filled with love and harmony. परमेश्वर ने इस संसार को बड़े अच्छे तरीके से बनाया जिसमें प्रेम और शांति बनी हुई थी। Right? Today we don't have that prem and shanti. आज हमारे पास वो प्रेम और वो शांति इस संसार में नहीं है। We may be well off, we may be living good, but still there are problems in the world. हो सकता है हमारे पास धन संपत्ति हो, लेकिन There are problems in the world. लेकिन बहुत सारी समस्याएं दुनिया में हैं। Right? So the reconciliation between mankind and God is because of the problems that were created due to sin. और परमेश्वर और मानव जाति के बीच में जो मेल मिलाप की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो बहुत सारे पाप की वजह से ऐसा हुआ। Right? There is a big gap between God the Father and mankind because of sin. परमेश्वर पिता और मानव जाति के बीच में पाप के कारण बहुत बड़ा फासला है। Right? We have rebelled against God. We are His enemies, and that is why we have hurt Him. हमने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है। And you can understand this. You may have a friend whom you would have hurt, and there is a relationship which is broken. कोई आपका मित्र होगा, सोचिए उसके बारे में कि अगर आपका संबंध उससे अच्छा नहीं है You will not be comfortable in front of that particular person. तो उस मित्र के साथ जिससे आपका रिश्ता टूट गया है उसका सामना करना भी आपको मुश्किल होता है। Right? You would remember about things that that person would have said to you, or you would have said to that person. और आप याद करेंगे जो कुछ उसने आपको बोला था, वो याद करेगा जो कुछ आपने उसको बोला था। And this continues, and you try to avoid meeting that person. और इसलिए ये चलता रहता है और आप उससे आमना सामना नहीं करना And चाहते this will go on until and unless something is done to mend the relationship. और ये तब तक चलता रहेगा जब तक उस खराब हुए रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ किया ना जाए। So reconciliation is the efforts put in to mend the relationship. और इसलिए मेल मिलाप क्या है, कुछ करना पड़ता है संबंध को ठीक करने के लिए। Right? We were in sin. हम लोग पाप में थे। Right? We were dead in sin. और हम पाप में मरे हुए थे। Right? I like a very good example which Pastor Joy had given about the weight of water. एक एग्जाम्पल जो पास्टर जॉय ने दिया था वो मुझे बहुत पसंद है, पानी के वजन को लेकर। I was just explaining before the church began, we don't have water in our apartments for last 3 days. मैं बता रहा था कि शुरू होने से पहले कि हमारे जहाँ रहते हैं, हमारे घर में, हमारी बिल्डिंग में 3 दिन से पानी की एक बूंद नहीं है। And we have been filling buckets of water from the ground floor and taking it to the 4th floor. और हम ग्राउंड फ्लोर से बाल्टियां भरकर पानी की ऊपर लेके जाते हैं। I can understand the weight of water. मैं समझ सकता हूँ पानी का कितना बोझ कितना भार होता My है। arm and my shoulder knows it very well. मेरे हाथ को पता है पानी कितना भारी होता है। Right? But this weight of water is not felt when you are swimming. लेकिन ये पानी का जो वेट है पानी का, ये तब हमें महसूस नहीं होता जब हम पानी के नीचे होते हैं। Right? When you are swimming, you don't feel the weight of the water pressing you down. जब आप स्विम कर रहे होते हैं तब आपको पानी का बोझ या पानी का जो वेट है आपको महसूस नहीं होता। Your body is not pained because of the water that is on top of you. आप पानी आपके ऊपर है, आप पानी के नीचे हैं, इसलिए आपको पानी का बोझ महसूस नहीं होता। You are immersed in water. आप पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। Likewise, when you are immersed in sin, you do not realize what sin is. उसी प्रकार जब हम पाप में डूबे हुए होते हैं हमें पता नहीं चलता कि पाप कैसा होता है। Sin has captivated and captured you. क्योंकि पाप ने पूरी तरह से आपको जकड़ लिया है, घेर लिया है। And we are dead in sin. उसी का मतलब है पाप में मरे हुए Now, होना। how do we get out of this? अब इससे बाहर कैसे निकलें? A dead person cannot do anything. एक मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। We are all dead in sin. We cannot come out of it on our own. हम में से जो मरे हुए हैं, हम जो पाप में मरे हुए होते हैं, हम बाहर नहीं आ
आ सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते। Any amount of effort that you do is useless because you are a dead person. कुछ भी आप करें, कितना भी प्रयास करें, क्योंकि आप पाप में मरे हुए हैं, आप अपने आप को पाप से नहीं बचा सकते। So somebody else has to take the initiative to bring you out of that situation. इसलिए किसी और को कुछ करना पड़ेगा कि वो कुछ करे, ताकि वो आपको पाप की इस मृत्यु से बाहर निकाल सके। And you see the amazing thing, the person whom we have offended, the person whose against we are, he took the initiative to bring us out of और that ये बड़ी situation. अजीब सी बात है, आप देखिए कि हमने जिसके खिलाफ पाप किया, जिसको हमने चोट पहुंचाया, वही हमें पाप से निकालने के लिए कुछ करता So है। God the Father decided that he will take the initiative to bring us out of that sinful और situation. इसलिए पिता परमेश्वर ने फैसला किया कि वो कुछ करेगा ताकि वो हमें पाप की मृत्यु से निकाल सके। You know, the relationship is broken because God the Father, he is a holy and a righteous God. रिश्ता हमारा इसलिए टूटा परमेश्वर से क्योंकि परमेश्वर सिद्ध और पवित्र है। He cannot tolerate sin. वो पाप को के साथ समझौता या पाप को झेल नहीं सकता। So because of the sin, something has to be done to mend the relationship. इसलिए क्योंकि हमने पाप किया है और हमारे पाप की वजह से कुछ करना पड़ेगा प्रभु के साथ मेल मिलाप ठीक होने के लिए। He decided to send his one and only son to die in place. और इसलिए प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि वो हमारे लिए मर जाए। Right? Now this is very powerful. और ये बहुत बहुत एक शक्तिशाली बात है। We call today as a Good Friday. आज के दिन को हम गुड फ्राइडे कहते हैं। It was not, I'm sure it was not good for Jesus. ये प्रभु यीशु के लिए उतना अच्छा अनुभव नहीं था। He was tortured, उनको बहुत अत्याचार किया he गया, bled, उनको उनका खून बहाया गया, right? He was given a crown of thorn, उनको कांटों का ताज पहनाया he गया, was beaten, उनको बहुत मारा गया and then he was nailed onto the और cross. तब उनको कीलों के साथ क्रूस पर टांग दिया So गया। of course it is not good for him, तो यीशु मसीह के लिए ये अच्छा अनुभव नहीं था। right? But for you and me, the power of love is depicted on that cross. लेकिन हमारे लिए प्रेम की जो ताकत है वो क्रूस पर दिखाई पड़ती है। Right? We know that love can get people to do strange things and extraordinary things. हम जानते हैं कि प्रेम की वजह से लोग दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। There is a story of a Nazi a priest who in a Nazi camp offered his life to save a teenager. एक प्रीस्ट था, एक पुरोहित या प्रीस्ट थे जिन्होंने एक नौजवान को बचाने के लिए अपना जीवन दिया नाजी कैंप के अंदर। His offer was accepted and the priest was killed, but the boy was saved. और ये ऑफर जो था प्रीस्ट का, ये एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से प्रीस्ट मर गया लेकिन नौजवान बच गया। In the time of Oliver Cromwell, who is basically a commander in chief in the earlier times, he sentenced a young soldier to death. एक कमांडर थे, उन्होंने एक नौजवान को मृत्यु के लिए घोषणा की। And he said, tomorrow morning when the curfew bell, there is a big bell, the curfew bell, when it rings, this person will be shot dead. और उन्होंने कहा कि कल जब बड़ी घंटी बजेगी तब इनको मार दिया Now जाएगा। that young soldier's fiancée, she loved the soldier very much. जो व्यक्ति था जो मरने वाला था, उसकी जो होने वाली पत्नी थी वो उसे बहुत प्यार करती So थी। what she did in the night, she climbed up to the bell and she tied herself to the clapper of the bell. और उसने क्या किया, रात को वो घंटी जहां ऊपर लगी हुई थी वहां वो चली गई और अपने आप को उस घंटी से बांध लिया। You know, as the soldiers were pulling the bell, there was no sound coming. और जब वो सोल्जर्स जब वो घंटी को दबा रहे थे बजाने के लिए, कोई आवाज नहीं आ रही Why? थी। Because this fiancée was tied to the clapper and it was not making any sound. क्योंकि ये जो लड़की थी जिसके पति को मारा जाने वाला था, ये इसने अपने आप को घंटी से बांध लिया था और कोशिश करने पर भी वो घंटी बज नहीं पा So रही the थी। soldiers went up and they saw that this girl was battered and she was bleeding because she was banged against the bell. और जब वो लोगों ने ऊपर जाके देखा तो पता चला कि ये जो लड़की थी ये खून से लथपथ है, क्योंकि जो उसके साथ हो रहा था। So Oliver Cromwell, when he heard about this, he pardoned the soldier and let them go because of the love. तो वो जो कमांडर था उसने जब इस तरह के प्रेम को देखा, लड़की के प्रेम को देखा, तो उसने उसके होने वाले पति को, सोल्जर को माफ कर दिया और उनको जाने दिया। Love pushes us to do something strange, something extraordinary. प्रेम जो है वो दूसरे के लिए हमें कुछ भी करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। I am from a South family. मैं एक दक्षिण भारत परिवार से हूँ। My wife is from a North Indian family. मेरी पत्नी उत्तर भारत के परिवार से है। Ours is a love marriage. हमारी लव मैरिज हुई थी And in order to impress her and her family, I learned the Punjabi language so that I could converse with them and maybe
और उनके get परिवा- their favor. उनके माँ बाप को खुश करने के लिए मैंने उनकी भाषा पंजाबी भाषा को सीखा। So yes, love pushes you to do strange things. सो प्रेम आपको दूसरों के लिए अद्भुत कार्य करने के लिए प्रेरित You करता know, all है। these examples, they give us a small glimpse of the love that God would have for us. ये सारे उदाहरण हमें प्रेम के लिए कुछ ना कुछ इशारा करते हैं उस प्रेम के लिए जो प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। God the Father sent His only Son to die for us. परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। Probably we cannot imagine or experience the depth of this thing. इस प्रेम की गहराई को हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, But just imagine what Christ is crying out when He is on the cross. Father, Father, why have you forsaken me? आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर ये शब्द कह रहे थे उसका कितना गहरा भाव होगा जब उन्होंने कहा हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? God the Father forsake His own Son because of the sin that was on upon Him. परमेश्वर ने अपने पुत्र तक को त्याग दिया हमारी खातिर हमें बचाने के लिए। The pain which Father and Son both bore because sin had to be eliminated. पिता और पुत्र दोनों को बहुत दुख सहना पड़ा क्योंकि हमारी खातिर, हमारे पापों की खातिर। Why would anyone do something like this? ऐसा क्यों करेगा कोई भी? Only because of love. ये सिर्फ प्रेम की वजह से ऐसा know, कोई करेगा। Paul writes in Romans chapter 5 verses 8 and 10. पौलुस रोमियो 5, 8 और 10 पद में कहता है, God has shown us how much He loves us. परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। It was while we were still sinners that Christ died for कि us. जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मर गया। And verse 10 says, we were God's enemies, but He made us His friend through the death of His Son. हम तो परमेश्वर के दुश्मन थे लेकिन अपने पुत्र की मृत्यु से उसने हमें उसके मित्र बना दिया You है। know, we may do good things because we love somebody, हम दूसरों के लिए अच्छे काम कर सकते हैं क्योंकि हम उनको प्रेम करते हैं, and we do it because we know that they also love us back. और हम उनके लिए भी करते हैं, उनके लिए अच्छा काम करते हैं क्योंकि वो भी हमको बदले में प्रेम करते हैं। But Christ gave His life while we were His enemies. लेकिन प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी जबकि हम उसके दुश्मन ही थे। Right? We did not deserve what Jesus did for us. हम उसके योग्य नहीं, जो प्रभु ने हमारे लिए किया उसके हम योग्य नहीं Right? थे। And not just that, He gave us salvation, which again we did not deserve. उसने हमें उद्धार दिया, पापों की माफी दी जो हम उसके लायक नहीं So we थे। received हमने that we do not deserve. हमने वो पाया जिसके हम योग्य नहीं, That is grace. इसी को अनुग्रह कहते हैं। Right? And His death on the cross, He reconciled us with God the Father. और अपनी मृत्यु के द्वारा जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर सही, उस मृत्यु के द्वारा उसने आपका पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा We दिया। are once again friends with God. अब हम दोबारा से प्रभु के मित्र बन गए हैं। We no longer are subject to His wrath. अब हम परमेश्वर के क्रोध के पात्र नहीं हैं, That is mercy. इसको दया कहते हैं। So through grace and mercy, He reconciled us with the Father and gave us this new life. तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से और अपने दया से, अपनी करुणा से उसने हमें बचा दिया So है। when Jesus Christ said, "It is finished," He's indicating that this task of reconciliation is finished. जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ तो प्रभु ने, उसका मतलब ये था कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने का काम पूरा हुआ। Right? He came to ensure that we are reconciled and we are able to enter into His kingdom and have eternal life. वो इसलिए आया ताकि हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके और हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकें। You know, it is very easy to see, yes, God has done everything, I don't have to do anything. ये बहुत आसान है कहना और देखना कि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। Yes, in a way it is true. There is nothing more you can do to what Jesus has already done. ये सत्य है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं उसके बाद जो प्रभु ने किया है। Jesus has accomplished the reconciliation and I have received the salvation. यीशु ने मेल मिलाप का काम पूरा कर दिया, मैंने उस पर विश्वास किया और मुझे उद्धार मिल गया। No amount of good works can save me. किसी भी प्रकार के भले काम हमें बचा नहीं सकते। No pilgrimage, no donations can save me. कोई दान देना या कोई तीर्थ यात्रा करना हमें बचा नहीं So सकता। what is it that you and I have to do? तो फिर आपको और मुझे क्या करना है? John 3:16 says it clearly. यूहन्ना 3:16 में लिखा है, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish
but have eternal life. यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से बहुत इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। There is something you and I have to do. कुछ तो है जो हमें करना है। We need to believe in the finished work of Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह के उस पूरा किए हुए काम पर विश्वास We करना है। need to have faith and trust in Him that I have been redeemed from sin and reconciled with God. हमें इस बात पर विश्वास करना है कि उसने पाप से हमें छुटकारा दे दिया है और उसने हमारा पिता के साथ मेल मिलाप करवा दिया You know, है। we sing this song, Christ is enough for me. हम ये गाना गाते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए काफी है, And that is true. और ये सच है। I only need Christ. मुझे सिर्फ यीशु चाहिए। There is nothing else that can fulfill my requirement to be reconciled to God. मुझे और कुछ नहीं करना है पिता के साथ अपना मेल मिलाप करवाने के लिए, Because everything He has done क्योंकि सब कुछ उसने कर दिया है and it is finished. और सब कुछ और ये काम पूरा हो गया So है। as we come to His table, let us just think in our minds, in our hearts, have we really accepted Christ? आज जब हम प्रभु की मेज में भाग लेने वाले हैं, हम सब अपने मन को जांचें, क्या सचमुच हमने यीशु को ग्रहण किया है? Do we realize what He has done for our lives? क्या हम इस बात को मानते हैं, सोचते हैं जो उसने हमारे लिए किया है? John 3:16 says, you have to believe so that you do not perish. यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि आप विश्वास करें ताकि आपका नाश ना हो। If you have not yet believed on the finished work, you are still in the world. यदि आपने प्रभु यीशु के संपूर्ण उस कार्य पूरा किए हुए काम पर विश्वास नहीं किया तो अभी भी आप संसारिक हैं। Sin still has captivated you. अभी भी पाप ने आपको पकड़ा हुआ है। Right? You are still in this world in the grip of sin. अभी भी आप संसार में हैं, पाप की पकड़ में हैं, And by that terms, you are still a dead person. और उस हिसाब से अभी भी आप मरे हुए So हैं। we need to think, do I need to remain in this dead position? आपको सोचना है, क्या आप इस मरी हुई अवस्था में रहना चाहते हैं, Or do I accept what Christ has done on the cross and take my life? या फिर आप जो काम प्रभु यीशु ने पूरा किया उसे मानकर स्वीकार कर आप अनंत जीवन पाना Right? चाहते There is a हैं। big exchange that is happening on the cross. एक बहुत बड़ा आदान प्रदान क्रूस पर हो रहा है। My sins have been taken away मेरा पाप लिया जा रहा है and His righteousness has been और given उसकी to me. धार्मिकता मुझे दी जा I रही have है। now been made right in front of a holy God. अब मैं पवित्र परमेश्वर के सामने सिद्ध करार कर दिया गया We हूँ। can with confidence approach the Father and call Him Abba Father. अब हम हियाव के साथ पिता के सामने आ सकते हैं और उसे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं, All because of the finished work of Christ. क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे उद्धार का काम पूरा किया। May the Lord give us strength to understand this and accept this in our life. प्रभु इस चीज को, इस सत्य को समझने के लिए हमारी सहायता करे। Amen.